السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچن اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے منچن اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ روح کا چین، پہلا حصہ۔ رات خاصی بیت چکی تھی۔ میں ایک شادی کی تقریب سے لوٹ رہا تھا۔ مجھے رات کی شادیوں سے بڑی چڑ تھی، اس لیے میں شادی بیاہ کی تقریبات میں جانے سے گریز کرتا تھا۔ آج بھی میرا شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن ابا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے سے مجھے جانا پڑ گیا۔ شادی ہمارے قریبی رشتہ داروں میں تھی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں سائیکل کے پیڈل پر تیز تیز پاؤں مار رہا تھا۔ ہمارے گھر سے ذرا پہلے راستے میں قبرستان آتا تھا۔ قبرستان آتے ہی مجھے خوف سا آنے لگا۔ بچپن ہی سے نہ جانے کیوں مجھے قبرستان کے قریب سے گزرنے پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اندھیرے میں کوئی آسیب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ میں تیزی سے دوڑ لگا کر قبرستان سے دور ہوتا چلا جاتا تھا۔ بچپن کا خوف آج بھی مجھ پر غالب تھا۔ میں 18 سال کا ہو چکا تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ گھر جانے کے لیے راستہ یہی تھا۔ اس کا متبدل کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میرے دوست بھی میری اس بزدلی سے واقف تھے اور اس معاملے میں میرا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ میں خاموشی سے ان کا مذاق برداشت کر جاتا، لیکن اپنے خوف پر کبھی قابو نہیں پا سکا تھا۔ گورکنوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اکثر رات کے وقت قبرستان میں ایسے گھومتے پھرتے رہتے تھے جیسے وہ قبرستان میں نہیں کسی پارک میں گھوم رہے ہوں۔ قبرستان کے آتے ہی میرے ذہن پر خوف طاری ہو گیا۔ سائیکل چلاتے ہوئے میں نے ایک نظر قبرستان پر ڈالی۔ قبرستان میں کسی بزرگ کا مزار بنا ہوا تھا، جہاں ایک بلب روشن تھا۔ بلب کی روشنی میں قریب کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مزار سے چند قدم دور نصیر کھڑا دکھائی دیا۔ نصیر کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا کہ وہ اس وقت قبرستان میں کیا کر رہا ہے، حالانکہ اس کا گھر قبرستان سے بہت دور تھا۔ ایک لمحے کو میرا خوف جاتا رہا اور میں ایک درخت کے پاس سائیکل کھڑی کر کے اس کی جانب لپکا۔ نصیر، میں نے زور سے آواز لگائی۔ سناٹے میں میری آواز بہت تیز گونجی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری آواز سن کر میری طرف لپکے گا، لیکن اس نے مجھے دیکھ کر دوڑ لگا دی۔ میں بھی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ مجھے قبروں کو پھلانگتا دیکھ کر وہ بھی اور تیز ہو گیا تھا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ میں نے اس کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا۔ اسے یوں غائب ہوتا دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نصیر کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ وہ قبرستان سے کیسے غائب ہو گیا؟ میرے بدن سے پسینے چھوٹ پڑے۔ میرے علاوہ اس وقت قبرستان میں کوئی نہیں تھا، اس لیے زیادہ خوف طاری تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق میری بے بسی پر دان نکالے کہکے لگا رہی ہے۔ اچانک جیسے میرے بدن میں طاقت سی بھر گئی ہو۔ میں تیزی سے قبروں کو پھلانگتا ہوا دوڑ پڑا اور سائیکل کے پاس پہنچ کر میرا بھاگنا بند ہوا۔ سائیکل پر بیٹھتے ہی میں نے پیڈل پر بدحواسی کے عالم میں پاؤں مارنا شروع کر دیے اور چند لمحوں میں قبرستان سے دور نکل گیا اور گھر آ کر ہی دم لیا۔ رات میں کئی بار میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن آنکھ کھلنے پر احساس ہوتا کہ چند لمحوں پہلے میں نے ڈرا دینے والا جو منظر دیکھا وہ خواب تھا۔ اس بات سے دل کو سکون ملتا اور میں دوبارہ سو جاتا۔ خواب میں جو منظر مجھے آ رہا تھا
वो कुछ यूं था कि मैं कब्रिस्तान में जा रहा हूँ और अचानक मेरे सामने नसीर आ जाता है। मैं अभी इससे बात करने ही वाला था कि कोई सियाह लिबास में मलबूस मखलूक अचानक वार्ड होती है और नसीर को उठाकर ले जाती है। मैं चीखना चाहता हूँ लेकिन मेरी आवाज़ हलक में फंस कर रह जाती है और बेइख्तियार मेरी आँख खुल जाती है। सुबह कॉलेज में मेरी मुलाकात नसीर से होने पर मैंने कब्रिस्तान में इसकी मौजूदगी और गायब होने से मुतालिक बात पूछी तो वो हंसकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं रात में कब्रिस्तान जाकर क्या करूँगा? तुम्हें ज़रूर वहम हुआ है। मुझे वहम नहीं हुआ, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें कब्रिस्तान में देखा था और मैं जब तुम्हारे पीछे भागा तो तुम गायब हो गए। मैंने उसे बताया। मेरा तुम्हें एक कीमती और मुफीद मशवरा है कि आइंदा कभी कब्रिस्तान के अंदर इस तरह मत चले जाना। कब्रिस्तान में आसेब होते हैं जो रात में लोगों को तंग करते हैं। वो इंसान के दोस्तों और रिश्तेदारों के रूप में नजर आते हैं। इनके पास जाने वाले शख्स पर वो आसेब हमला कर देता है या इसके जिस्म में दाखिल होकर इसे और इसके घर वालों को परेशानी में मुब्तला कर देता है। नसीर ने कहा। हा 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 हा, नसीर सच कह रहा है। फरहान बीच में बोल पड़ा। हमारे पड़ोसी मिर्जा नदीम की लड़की पर आसेब आ गया था। आसेब के बायस इसने घर में तोड़ फोड़ मचा दी। कभी किसी को उठाकर दीवार पर दे मारती थी। सब घर वाले परेशान हो गए थे कि इतनी नाजुक लड़की में इतनी ताकत कहाँ से आ गई है जो वो इतनी ताकतवर हो गई है कि अपने से भारी भारी सामान और इंसानों को इस तरह फेंक रही है जैसे कोई खिलौना फेंक रही हो। मुमकिन है आया हो, मैंने कहा। मैं इनसे उस वक्त कह भी सकता था। नसीर को मैंने खासे फासले से देखा था। ये भी हो सकता था कि मेरा वहम हो, वहाँ कोई भी ना हो। नसीर का रात के 12:30 बजे कब्रिस्तान में क्या काम हो सकता था? उस वक्त को गुजरे 2 माह हो चुके थे और मैं भी उस वक्त को भूलता जा रहा था। उस दिन से मैं महसूस कर रहा था कि नसीर की सेहत पहले जैसी नहीं रही थी। वो सूखता जा रहा था। इसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ते जा रहे थे। इसके जिस्म से गोश्त कम और हड्डियों का उभार ज्यादा दिखाई देने लगा था। मुझे इसकी सेहत गिरने पर सख्त तशवीश थी। मैंने कई बार इसको मशवरा दिया कि वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए। वो मेरी बात को हंसकर टाल कर हाँ हाँ हूँ करके रह जाता था। एक रात में साइकिल पर कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। मैं रात में घर से बाहर ज्यादा देर नहीं रहता। उस दिन इत्तेफाक से अपने दोस्त गुलाम मोइनुद्दीन के घर गया। उसके घर वाले किसी शादी की तकरीब में गए हुए थे। गुलाम मोइनुद्दीन ने डीवीडी पर मेरे पसंदीदा गाने लगा दिए। मैं और गुलाम मोइनुद्दीन गाने सुनने में इतने मगन हुए कि वक्त का पता ही नहीं चला और मैं उस वक्त बुरी तरह चौंका जब मेरी नजर घड़ी पर पड़ी। रात के 12 बज चुके थे। मैं बदहवासी में तेजी से सोफे से उठा और गुलाम मोइनुद्दीन से इजाजत लेकर घर को चल दिया। कब्रिस्तान आते ही मेरी साइकिल अचानक एक झटके से फिजा में उछली और मैं धड़म से सड़क पर गिर पड़ा। साइकिल के नीचे एक बड़ा पत्थर आ गया था जो मैं देख नहीं पाया और साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ा। मैं जैसे ही सड़क से उठा अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई शख्स कब्रिस्तान से बाहर आया है। मैं इसको देखकर बुरी तरह चौंका। वो शख्स कोई और नहीं, नसीर ही था। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखें आग का शौला लग रही थीं। आंखें खुली होने के बावजूद वो ऐसे चल रहा था कि जैसे नींद में चल रहा हो। नसीर, नसीर, ठहरो, मेरी बात सुनो। मैंने बेसाख्ता इसे पुकारा।
मगर नसीर चलता हुआ मेरे पास से गुजर कर इस तरह जाने लगा जैसे इसने मेरी आवाज सुनी ही ना हो। मैंने इसका कंधा पकड़कर उसको झटका दिया। वो ऐसे चौंका जैसे मैंने उसे नींद से बेदार कर दिया। वो गुस्से से घूर कर मुझे देखने लगा। नसीर, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैंने उसे हैरत से देखते हुए कहा। जिंदगी चाहता है तो फौरन मेरी नजरों से दूर हो जा, वरना अभी और इसी वक्त तुझे खत्म कर दूंगा। नसीर ने अजीब नजरों से और गुस्से भरे लहजे में कहा। इसकी आवाज मुझे बदली बदली सी लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कोई बहुत ही भारी भरकम शख्स बोल रहा है। उसकी आवाज से बेइख्तियार मुझ पर कपकपी सी तारी हो गई थी। मैंने कांपते हाथों से साइकिल को पकड़ा और सवार होकर तेज रफ्तारी से साइकिल को भगाता हुआ आगे को बढ़ गया। फिर मैंने पलट कर भी नहीं देखा। उस वक्त मैं बहुत खौफजदा था और जल्द से जल्द घर जाना चाहता था। रात भर मैं सुकून की नींद ना सो सका। बार बार आंख खुल जाती थी। नींद से बेदार होने पर मुझे अपना जिस्म गरम गरम लग रहा था और दर्द भी कर रहा था। तुम्हें तो सख्त बुखार है, अम्मी जान ने मेरे बिस्तर से उठने पर मेरे माथे पर हाथ लगाया। तुम आराम करो, आज कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मुश्किल से बिस्तर से उठा और हाथ मुंह धोकर चाय और पापे से नाश्ता किया। बुखार की गोली घर में मौजूद थी। खाने से दोपहर तक बुखार का जोर टूट गया और मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। अलबत्ता बुखार से मुंह का जायका कड़वा हो गया था। मैं 2 दिन तक कॉलेज नहीं जा सका। तीसरे दिन कॉलेज जाने पर पता चला कि नसीर भी 2 दिन से नहीं आ रहा है। मैं उस रात के वाक़े से वैसे भी खौफज़दा था, इसलिए मैंने नसीर के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं किया कि मैंने नसीर को किस हालत में कब्रिस्तान से निकलते देखा था। उस वाक़े को 2 माह गुजर गए थे, लेकिन नसीर कॉलेज नहीं आया और ना ही मेरी हिम्मत हुई कि इससे मुलाकात करने घर जाऊं और पूछूं कि वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा। एक दिन नसीर के छोटे भाई निसार से मुलाकात हुई। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्यों भाई निसार, तुम्हारा भाई कॉलेज नहीं आ रहा है, खैरियत तो है? नसीर भाई की 2 माह से तबीयत खराब है, वो सूख कर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है। अगली किस्त देखने के लिए मंच एंड स्टोरी को सब्सक्राइब कर दें।